بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان آج پھر دنیا کے سامنے کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے۔ عمران خان UN جنرل اسمبلی سے رات کو خطاب کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم LOC پر اشتعال انگیزیاں دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ انسداد منی لانڈرنگ اور کورونا کے خلاف مؤثر حکمت عملی بھی اجاگر کریں گے۔ LOC پر بھارتی اشتعال انگیزیوں کے ثبوت دنیا کے سامنے۔ غیر ملکی سفارتکاروں نے دورہ LOC کی تصاویر شیئر کر دی۔ آذربائیجان کے سفیر نے کہا کہ بھارت کسی کو اصل حقائق جاننے کا موقع نہیں دیتا۔ سفیر یورپی یونین نے بھارتی فائرنگ سے تباہ شدہ املاک متاثرہ بچوں کو دکھایا۔ غیر ملکیوں کا بہترین انتظامات پر DG ISPR سے اظہار تشکر۔ بھارت میں 11 ہندوؤں کا قتل، بھارتی ہائی کمیشن کے باہر دھرنا۔ رمیش کمار نے کہا کہ بھارت میں بہکاوے میں نہ آنے والوں کو مار دیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ہندو برادری سے اظہار یکجہتی۔ پورا اقوام عالم بھارت کے رویے سے پریشان ہے۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں حکومت متاثرین کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کرے گی۔ کراچی میں گلستان جوہر میں پولیس مقابلہ، ایڈیشنل SHO شہید۔ واردات کی اطلاع پر پولیس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا تو مقابلہ ہو گیا۔ فائرنگ سے رحیم خان شہید، کار سوار ملزمان بھی زخمی ہوئے۔ کراچی میں پولیس مقابلے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان نے فرار ہونے کے لیے چھینی گئی 3 گاڑیاں استعمال کی۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس کہتے ہیں المیہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کو ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے، بڑوں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ یہ روایت اب ختم کرنا ہوگی۔ انکوائری کمیشن نے سانحہ سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا۔ کمیشن نے آرمی پبلک اسکول کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے۔ معاشرے میں جانوروں سے ہمدردی ہو تو بچوں سے زیادتیاں نہ ہوں۔ چڑیا گھر کے جانوروں کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جہاں جان کی قیمت نہ ہو وہاں ایسے جرائم ہوتے ہیں۔ بچوں کو اسکولوں میں جانوروں کے حقوق پڑھائے جانے چاہیے۔ بیرون ملک سے آئے ایکسپرٹ ڈاکٹر عامر خلیل عدالتی معاون مقرر۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، 2 کشمیری شہید۔ دونوں کو ضلع اسلام آباد میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ گزشتہ روز شہید کشمیری وکیل بابر قادری کی نماز جنازہ سری نگر میں ادا کی گئی۔ نتھیا گلی، ایوبیہ اور گرد و نواح میں ژالہ باری، سیاحوں کی موجیں۔ ایبٹ آباد اور مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ عمر اکمل سپاٹ فکسنگ کیس سے متعلق اپیلیں، PCB کی کسی قریبی ملک میں سماعت کی درخواست مسترد۔ عالمی ثالثی عدالت میں آن لائن سماعت کی اپیل بھی مسترد ہونے کا امکان۔ معروف کلاسیکل اور غزل گائک اسد امانت علی کی یادیں۔ اسد امانت علی حیات ہوتے تو آج زندگی کی 65ویں بہار دیکھ رہے ہوتے۔ پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ نے موسیقی کو نئی جہتیں دی اور منفرد مقام بنایا۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی میڈیا کی مذموم کوشش ناکام۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد گلفراز کی اس رپورٹ میں۔ گل کردے پاکستان دی جڑا اپنی ناپاک حرکتاں تو باز نہیں آ رہا۔ یہ جو بچی بلبل ہے 17 سال دی بیٹی آ، پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی میڈیا کی مذموم کوشش ناکام۔ سکھ برادری کی 22 سالہ لڑکی بلبل کور کو اٹک پولیس نے ڈھونڈ نکالا۔ ممبئی حملوں کا معاملہ ہو یا بلبل کور کا، نام نہاد بھارتی میڈیا نے
کبھی پاکستان پر الزام تراشی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ چند ہی دن قبل حسن عبدال سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ سکھ لڑکی اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی، جس کو لے کر نام نہاد بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور بنا ثبوت سکھ لڑکی بلبل کور کے اغوا کا بھونڈا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੀ ਬੁਲਬੁਲ ਆ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ एक गुरबाणी खुद रसाइटल कर दिया, कीर्तन पाठ। लेकिन अटक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी इदारों ने चंद ही दिनों में दिन रात मेहनत करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सिख लड़की बुलबुल कौर को ढूंढ निकाला, जिसको पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सिख लड़की बुलबुल ने अदालत में बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, जिसके बाद लड़की को दारुल अमान भिजवा दिया गया। बाद अज़ां अदालत की इजाजत और सिख लड़की की रजामंदी से इसको DPO अटक सैयद खालिद हमदानी ने इसके वालिदैन के हवाले कर दिया। इस मौका पर बुलबुल कौर के वालिद प्रीतम सिंह ने लड़की को बाहिफाजत ढूंढ कर इनके हवाले करने पर हुकूमत पाकिस्तान और अटक पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। शुक्रिया अदा करना जिन्होंने इस औखी घड़ी में इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिता। मेरी बच्ची मैनू सही सलामत मिल गई। अब ये ने सामने है, जिस विच महकमा पुलिस ने, इंतजामिया ने ते होर सरकर्दा लोगों ने रात दिन मेरा साथ दिता। अज मेरी बच्ची साड़ा परिवार आप जी के सामने है। मैं तहे दिल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। DPO अटक सैयद खालिद हमदानी का कहना था कि अकलियती बरादरी हो या आम शहरी, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि इस वाक़या के बाद हम सिख लड़की के वालिदैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और बिलाखिर अटक पुलिस ने लड़की को बाहिफाजत ढूंढ कर वालिदैन के हवाले कर दिया है। ये हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी सिख बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। इनकी फैमिली में एक बड़ा सीरियस इशू था। हमने दिन रात काम किया, पंजाब पुलिस ने, अटक पुलिस ने। हमने बच्ची को बाहिफाजत अदालती कार्रवाई के बाद रिकवर करके अदालती कार्रवाई के बाद वालिदैन से आज मिलवाया। इस तमाम जितना ये टाइम रहा, इस दौरान हमने वालिदैन के साथ मुसलसल रब्ता रखा और इनको मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराम की। और पंजाब पुलिस और अटक पुलिस हम कमिटेड हैं कि हमारे जितने भी शहरी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, हम कमिटेड हैं कि इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, उनकी पूरी मदद करें। पूरी तरह से हमने इनका साथ दिया है और आगे भी चल के हम अपनी सिख बिरादरी को ये यकीन दिलाते हैं, अपनी तमाम मिनॉरिटी कम्यूनिटीज़ को यकीन दिलाते हैं, पंजाब पुलिस और अटक पुलिस हमेशा इनकी मददगार रहेगी। इस तरह ताज्जुब पर मबनी सहाफत करने वाले नाम नेहाद भारतीय मीडिया को हर बार की तरह मुंह की खानी पड़ी, जिसने इस मजमूम कोशिश के जरिए सिख बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने की नाकाम कोशिश की। मोहम्मद गुलफराज, हक न्यूज़, हसन अब्दाल। घोटकी में हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया के उर्स मुबारक में शिरकत के लिए सैकड़ों बसों और गाड़ियों का काफिला मुल्तान के लिए रवाना। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में शिरकत के लिए पन्नो आकिल से चाचड़ बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत सरदार डॉक्टर गुलाम अली अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ की क़यादत में सैकड़ों बसों और गाड़ियों का काफिला मुल्तान के लिए रवाना हो गया। काफिले में एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़, सैयद फैजान जेलानी, हाजी मुश्ताक अहमद चाचड़, अब्दुल सत्तार चाचड़, राना मोहम्मद कामरान, राना मोहम्मद अरसलान समेत हजारों की तादाद में पन्नो आकिल और घोटकी से ताल्लुक रखने वाली चाचड़ बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर गुलाम अली अब्बास और पप्पू खान चाचड़ ने कहा कि मुल्तान हमारे मुर्शिद की सरजमीन है। मुर्शिद के मज़ार पर हाजिरी देकर दिली सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नेक बंदों और वलियों के साथ हमारा रूहानी और ईमानी ताल्लुक है और ये तसलसल शुरू से लेकर अब तक चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह वालों के यहाँ जाकर रूहानी मामलात ठीक हो जाते हैं। हमारा ताल्लुक अल्लाह के नेक बंदों के साथ और इनके दामन से जुड़ा हुआ है। हमारे बड़ों ने भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की है। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर ट्रॉलर और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट,
तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। मटियारी के करीब शेखार थाने की हदूद में कौमी शाहराह पर ट्रालर और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसा, नतीजे में एक अफराद 55 साल इसाक वलद मोहम्मद इब्राहिम फौत हो गया, जिसके लाश को तालका अस्पताल मटियारी मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब शेखार पुलिस ने ट्रालर ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रालर को अपनी तहवील में ले लिया। दूसरी जानिब फोती के वर्षा ने बताया कि हादसे में फोती आला से अपने गाँव जा रहा था कि शेखार के करीब हादसा पेश आया। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज मटियारी। साहिवाल चीचावतनी के गांव में गरीब मेहनतकश मुलाजिम को तशद्दुद करने के बाद फायरिंग करके जख्मी कर दिया। साहिवाल चीचावतनी के थाना सदर के नवाई गांव 11N में जहीर नामी नंबरदार और उसके साथी ने अपने यहाँ दोबारा काम न करने पर साबका मुलाजिम को डेरे पे ले जाकर पर तशद्दुद किया और उसको फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया और इसी हालत में को बाहर जख्मी हालत में फेंक दिया। जख्मी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी नौजवान अहमद नवाज और उसके अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब, RPO और DPO साहिवाल से अपील करते हुए कहा कि वो इस वाक़े का नोटिस लेकर मुलज़मान को गिरफ्तार करवाएं और हमें इंसाफ दिलाया जाए। कोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। डिगरी के गांव 170A का गर्ल्स स्कूल खस्ता हाली का शिकार। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम की अदम तवज्जोही की वजह से डिगरी के नवाई काउंटी 170 में वाक़िया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महकमा तालीम की अदम तवज्जोही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। क्लास रूम्स और स्टाफ रूम्स की कमरों की छतों से प्लास्टर उखड़ना शुरू हो गया है, जो किसी भी वक्त जानी नुकसान का सबब बन सकता है। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल के क्लर्क की ऑफिस की छत का प्लास्टर उखड़कर अचानक नीचे गिर पड़ा। खुशकिस्मती से ऑफिस स्टाफ मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। समाजी रहनुमा इम्तियाज़ रईं और देह 170 के समाजी रहनुमा और इलाका मकीनों ने सूबाई वज़ीर तालीम और महकमा तालीम के अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मज़कूरा स्कूल की खस्ता हाली का नोटिस लेकर स्कूल के क्लर्क की ऑफिस की छत की फौरी मरम्मत करवाई जाए ताकि कोई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो सके। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी। प्रेस क्लब मीरवा गोरजानी के सरपरस्ते आला महबूब अली की ज़ेर क़यादत अहम इजलास। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के सरपरस्ते आला महबूब अली आरिसर की क़यादत में प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी ऑफिस में मीटिंग रखी गई, जिसमें प्रेस क्लब की नए साल बॉडी का इंतखाब किया गया। 2021 के इलेक्शन में प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के बिना मुकाबले सदर मजहर अब्बास गोरचानी, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट ज़हीर अहमद शर कामयाब हो गए। उसके बाद सरपरस्ते आला महबूब अली आरिसर और न्यू मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने बाकी साफी अफराद को भी ओहदे दिए गए, जिसमें सीनियर नायब सदर शेमीर नवानी, नायब सदर अल्लाह बख्श आरिसर, जॉइंट सेक्रेटरी मुजफ्फर नवानी, खजानची हरेश कुमार मेघवार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नवाज अली शाह, लीगल एडवाइजर असद समो, प्रेस सेक्रेटरी हरेश बासकानी, ऑफिस सेक्रेटरी मान सिंह भील, वर्किंग कमेटी चेयरमैन फराज गोरचानी, मेंबर खुशहाल और अब्बास गोरचानी मुंतखब हो गए। हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। एडिशनल IG हैदराबाद का SSP ऑफिस मटियारी में वुमेन प्रोटेक्शन सेल का इफ्तिताह। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG हैदराबाद जमील अहमद का SSP ऑफिस मटियारी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल करके पुलिस के जवानों ने सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और बच्चों ने एडिशनल IG को फूलों के ताइफ पेश किए। उस मौके पर एडिशनल IG ने SSP ऑफिस में वुमेन प्रोटेक्शन सेल का इफ्तिताह करके SSP ऑफिस में पौधा लगाया, जिसके बाद SSP मटियारी आसिफ अहमद बुग्गियों ने एडिशनल IG को जिले में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर एडिशनल IG ने मटियारी पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। ब्रीफिंग के दौरान जिले के तमाम SDP और SSP ऑफिस में मौजूद थे। उस मौके पर एडिशनल IG जिले के सियासी समाजी रहनुमाओं, साबिक जिले चेयरमैन मखदूम फखरुज़्ज़मा, PP रहनुमा मुमताज शाह, दीवान लेखराज, हाफिज बशारत ताहिरी ने मुलाकात करके जिले में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज मटियारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।